Good morning. My name is Akshay Mohan Jha. This is the session for class 8th, and I'm going to read the first chapter of supplementary reader, that's how the camel got its hump. I'm going to read this chapter, and students, I'm also going to try to explain this chapter slowly and gradually. I'll be explaining it in Hindi as well, I hope, and I want all of you to study it very carefully and then to move ahead. Now, how the camel got its hump. The world had just begun and the animals were working for humans. अ, संसार शुरू हुआ था और जानवर जो हैं वो काम करते थे ह्यूमंस के लिए, यानी आदमी के लिए. There was one lazy animal that did nothing but said nothing but hump. Sorry, there was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. एक जानवर था जो बहुत ही आलसी था, वो कुछ कहता नहीं था और सिर्फ हम्प कहता था. Even the clever jinn was at his wits end. और जो एक जिन था वो भी अपने बुद्धि के अंतिम छोर पे था. Means he was unable to understand how this lazy would start working. कहने का मतलब ये है कि जो सबसे होशियार जिन था वो भी नहीं समझ पा रहा था कि इस सबसे जो आलसी जानवर है उससे काम कैसे कराया जाए. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, शुरू में जब संसार शुरू हुआ था और जानवर इंसान के लिए काम करता था, there was a camel and he lived in the middle of the hollowing desert. एक ऊँट था और वो एकदम डेजर्ट के बीचों बीच रहता था. Howling desert, middle of howling desert. Because he did not, I want you to underline the word howling और इसका मीनिंग आपको ढूंढना है. ये आपका आज का काम है. Howling, underline the word howling. So howling desert, because he did not want to work, और वो काम नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles. वो लकड़ियाँ खाता, मतलब टहनियाँ खाता, और जो कटीले झाड़ी होते हैं उनको खाता. And when anybody spoke to him, he said hump. और जब भी उससे कोई कुछ कहता तो सीधा वो कहता hump. Just hump and no more. वो कुछ और नहीं कहता, बस hump ही कहता. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. एक दिन एक घोड़ा उसके पास आया. वो दिन था सोमवार का सुबह और उसके पीठ पे उसका पिट्ठू था. सैडल इज जिस पे लोग बैठते हैं, घोड़े के पीठ पे जो बैठते हैं उसको सैडल कहते हैं. सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कहता है ऊँट ओ ऊँट, हमारी तरह चलो. ट्रॉट इज द वे ऑफ हाउ अ हॉर्स वॉक्स. एक तरह का चाल होता है घोड़े का, उसको ट्रॉट कहते हैं. नाउ हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और इसके बाद कैमल ने उसकी बात सुनी और उसने कहा हम्प, और वो वहाँ से हिला तक नहीं. और इस तरह वो घोड़ा जो है वहाँ से चला गया और जाके इंसान को बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. उसी दौर में एक कुत्ता आया उसके पास, उसके मुंह में एक लकड़ी थी और आके बोला. बस इसको हम लोग ब्रेक करके यहीं से थोड़ा थोड़ा पार्ट बना रहे हैं. So I am breaking the video because I cannot do this in one go since it's a digital copy. So I'll be porting the second part soon after this. Please be online or please watch the video thoroughly. Okay. So our first vocabulary here would be howling. Underline the word howling. HOWLING. That's my first word for the day. Now, camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. तो कुत्ता आता है और उसको बोलता है कैमल ओ कैमल, हमारी तरह तुम भी काम करो जैसे हम लोग करते हैं. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे. और एंड टोल्ड द मैन, उसके बाद जब ये सवाल
कुत्ते ने बोला कैमल को, जब ये बात बोला तो कैमल ने फिर कहा हम्प, और उसके बाद कुत्ता वहाँ से चला गया. Presently the ox came to him, but the yoke on his neck, sorry. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. उसके बाद एक बैल आया और कैमल को बोला, कैमल ओ कैमल, हमारी तरह काम करो. और उसके गले पे, जो बैल के गले पे होता है योक, वो था, और उसने बोला कि हमारी तरह काम करो और चल के खेतों को जोतो जैसे हम करते हैं. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. इस तरह हम फिर कहा कैमल, और जो ऑक्स है यानी जो बैल है, इसके जवाब को सुन के वो वापस चला गया और जाके इंसान को या आदमी को बताया. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग. जब शाम हो गई तो उसके बाद व्यक्ति ने, उस आदमी ने घोड़े को बुलाया और कुत्ते को बुलाया, एंड द ऑक्स टुगेदर, और बैल को भी बुलाया साथ में, एंड सेड, थ्री ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. कहता है तीन तीन, तुम लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूं. बट द हम्प बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. कहता है मैं तुम तीनों के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे खेद है तुम लोगों के लिए, क्योंकि वो जो हम करता है रेगिस्तान में, वो जो जानवर है वो काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. नहीं तो अगर वो काम करना चाहता होता तो वो भी यहाँ आ गया होता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो अब चूंकि वो यहाँ आना नहीं चाहता तो मैं उसको अकेले ही छोड़ दूंगा. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. कहता है तुम लोगों को दोगुना काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके वजह से. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. इस तरह ये तीनों जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए. एंड दे हेल्ड अप अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. और इन लोगों ने पंचायत आपस में बातचीत की. एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ट. और कैमल जो है वो कड, अंडरलाइन द वर्ड कड हियर, एंड लाफ्ट एट देम, वो आया उनके पास और हंसने लगा. देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन. उसके बाद वो उनके नज़दीक आया और फिर उसने हम्प बोला और वहाँ से चला गया. Presently there came along the jinn who was in charge of all the deserts rolling in a cloud of dust. उसी समय जिन भी वहाँ पहुँच गया जो कि इंचार्ज था डेजर्ट का. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो पूरा धूल से भरा हुआ, जो धूल से पूरा सरोवर होकर वो जिन वहाँ प्रकट हुआ. सो this is the second part. The vocabulary for this second page is cud. You have to underline the word cud and you have to write down its meaning. Please be with me for the third segment of this chapter. Jinn of all deserts said the horse. जब जिन वहाँ पहुँचा तो घोड़े ने उससे कहा, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल. तो उसने सवाल पूछा जिन से कि क्या, आप बताओ कि क्या किसी के लिए भी सिर्फ बेकार बैठना सही है. सर्टनली नॉट सेड द जिन. तो जिन ने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं. वेल सेड द हॉर्स. तो फिर हॉर्स ने कहा, ठीक. देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो घोड़ा कहता है कि आपके इस रेगिस्तान में एक लंबा सा जानवर है जिसका गला बहुत लंबा है, पाँव भी बहुत बड़ी लंबे हैं, और उसने थोड़ा भी काम नहीं किया, वो चला भी नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया है मंडे के दिन से. He won't trot. वो चलता भी नहीं है, वो दौड़ता भी नहीं है. View said the Jinn, whistling. और ये एक डिसगस्ट का साइन है. जिन जो है वो दुखी होता है, वो कहता है उफ. हम लोग जैसे उफ कहते हैं वैसे ही व्यू कहता है, व्यू. दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट. तो वो जिन कहता है कि वो मेरा
ऊँट है और क्या कहता है वो इस पे? He says hump and he won't plow, said the ox. ऑक्स कहता है कि वो हमेशा हम्प कहता है और वो प्लाउ नहीं करता, वो जोतता नहीं है, खेत में साथ नहीं देता है. वेरी गुड, सेड द जेन. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तो उसने कहता है बहुत अच्छा, मैं जाऊंगा, मैं उसको हम्प करूंगा. एंड इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम मुझे 1 मिनट के लिए समय दोगे तो मैं जाता हूँ और मैं उसको ठीक करता हूँ. I'll hump. ठीक है. Now here I'll hump him means I will deal with him appropriately. I'll set him right. ये मीनिंग आपका नीचे बुक में दिया हुआ है. That means जिन कहता है, आश्वासन देता है इन तीनों को, जानवरों को, कि वो जाएगा और उसको दुरुस्त करेगा. ठीक है. This is the third segment and I believe you all have seen the comprehension check. I want all of you to study the comprehension check and write the question answer in your text copy. That's the first part. I want you to study, means all the three sections combined together. This is the first part of your chapter. To study it carefully, write down the vocabulary and do the question answer. Thank you as of now. Have a wonderful time.